Hello everyone, welcome to the platform. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. बता देते हैं क्या कवर करना है. आपके सामने है स्क्रीन्स पर. हम बात करेंगे ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर्स के बारे में. We'll talk about high risk food, Asia Oceanic Meteorological Satellite Users Conference, exercise Harimau Shakti, and lower fertility rate isn't the answer to the delimitation crisis. So this you connect with your GS paper 2. जैसे जैसे आर्टिकल्स आएंगे वैसे वैसे आई लेट यू नो कि आप कौन से आर्टिकल को किससे टॉपिक से कनेक्ट मेंस के किस टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हो. तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी है, मेंस से भी सवाल पूछा जा सकता है, मेंस में भी यूज कर सकते हो बेसिकली, राइट. डू सब्सक्राइब टू द चैनल. Shriram's IAS is serving the nation since 1985. We are offline and we are online as well. You can let others know about the platform and अपनी attendance mark कर दीजिएगा by liking this lecture. Comment section में you can share your feedbacks as well. Now, without taking any much time, let's come to the point जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा आज का पहला आर्टिकल. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्रपोजल टू एस्टैब्लिश. क्या एस्टैब्लिश करने का प्रपोजल? टू एस्टैब्लिश 9 वन स्टॉप सेंटर्स हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द एम्पावर्ड कमेटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. बेसिकली ये कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्रपोज्ड व्हाट सेटिंग अप ऑफ 9 वन स्टॉप सेंटर्स. अब ये जो प्रपोजल है इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द एम्पावर्ड कमेटी जो कि है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. बेसिकली आप लगा लीजिए कि ऐसे सेंटर्स हैं वन स्टॉप सेंटर्स. वन स्टॉप में समझ आ रहा है ना, वन स्टॉप क्या होता है? जहां पर हर एक चीज, all the services, support services are being provided, integrated on one location. Legal, medical, counseling needs, particularly for those women who are in distress or in the vulnerable situation. तो वो एक जगह पर मिल जाएगी. तो ये लाइंस मैं आपके सामने अभी रीड नहीं करूंगी, पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट समझा देती हूँ, फिर लाइंस पढ़ना फटाफट आसान हो जाता है. सुन लो पहले. ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर्स मतलब बेसिकली दे आर बीइंग सेट अप टू हेल्प विमेन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, providing them with all the support that they need in a one place only, like immediate assistance और critical services जैसे counseling हो गया, legal advice होगी, medical help हो गई, right? So 7 centers जो हैं they will have shelter homes for women. They will be set up in Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, UAE, Saudi Arabia, and 2 centers in Riyadh and Jeddah. तो other 2 centers in Toronto and Singapore, they will not have the shelter facilities, but they will still provide the important support services. So global one stop centers. एम पता चल गया, women को assist करना in the vulnerable situations. 9 कहाँ प्रपोज होंगे? दिस इज द लिस्ट. बाकी जो 2 सेंटर्स हैं, 7 ये हो गए, जिसमें से 2 हैं टोरंटो और सिंगापुर वाले, वहां पर शेल्टर होम फैसिलिटीज नहीं होंगी. ठीक है. तो टू फैसिलिटेट द रोल आउट ऑफ दीज इनिशिएटिव्स, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने they have opened a dedicated budget line for these missions. आगे क्या आर्टिकल कह रहा है कि इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड इज सेटअप. किस लिए? टू हेल्प इंडियंस लिविंग अब्रॉड, स्पेशली दोज हु आर इन ट्रबल. सो इट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर सपोर्टिंग वुमेन हु फेस टफ सिचुएशंस. ये फंड आपको प्रोवाइड करता है वैरायटी ऑफ सर्विसेज, इमरजेंसी हेल्प, ट्रेवल असिस्टेंस, लीगल एड, मेडिकल केयर, repatriation of mortal remains, मतलब bringing back the bodies of those who passed away abroad. So we have this ICWF that focuses on supporting the women who have been abandoned by their overseas Indians or foreign husbands, you can say. So you help them providing that legal help, you can say counseling to deal with that situation. So we have this fund, right? सब वो मैंने आपको बता ही दिया. Now the fund now covers emergency assistance, वो भी जैसे legal aid, medical care, repatriation of the mortal remains. तो एक legal assistance और counseling of the women जो है, पूरे specific provisions जो हैं, जो guidelines हैं, that are there in it. Countries जहाँ पर Indians live, तो legal panels have been set up to help Indians quickly and efficiently when they face legal problems. तो वहां पर भी हेल्प मिल जाती है. मान लो if an Indian citizen is involved in a minor legal issue, fund can be used to pay the fines on their behalf, right? So that is the whole ये. ठीक है. आगे चलते हैं. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू ट्रीट द पैकेज ड्रिंकिंग एंड मिनरल वाटर सेगमेंट एज हाई रिस्क फूड कैटेगरी. मतलब ये जो आप पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी होता है ना, मिनरल वाटर भी होता है,
So that is also, they have classified that as high risk food category. More strict monitoring checks will be applied to ensure safety, quality. अगर वो contaminated हो और they are not processed correctly, कितना बड़ा हेल्थ रिस्क है. तो इसीलिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के, मिनरल वाटर के, दे विल नाउ फेस टाइटर रेगुलेशंस, फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शंस टू इंश्योर कि उनका जो प्रोडक्ट है दे मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स. नाउ व्हाट इज दिस हाई रिस्क फूड कैटेगरी? जस्ट अ मिनट, ये आपका पेन. व्हाट इज दिस हाई रिस्क फूड कैटेगरी? मतलब वैसे फूड प्रोडक्ट्स जिनको एक्स्ट्रा केयर दे नीड और दे नीड एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग, आई वुड से. क्यों? क्योंकि हल्का सा भी इधर उधर हो तो दे विल कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स if they are not safe to consume. जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, फिश, एग, इंडियन स्वीट्स, न्यूट्रिशनल आइटम्स, प्रिपेयर्ड मील्स, फोर्टिफाइड राइस, ये सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं. अब पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर इज ऑल्सो एडेड इनटू दिस कैटेगरी. इसका मतलब दीज प्रोडक्ट्स विल गो थ्रू मैंडेटरी इंस्पेक्शंस टू एंश्योर कि दे आर सेफ टू ड्रिंक. So FSSAI has updated its risk-based inspection policy ताकि वो वाटर प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड करे. हाई रिस्क कैटेगरी पता चल गया कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, वही मिठाइयाँ जो आप खाते हो, ये सब कुछ. तो इसीलिए FSSAI ने अमेंडमेंट करी है इन इट्स रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन पॉलिसी, जिसमें उन्होंने ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर जो पैकेज होता है उसको भी इंक्लूड किया है. सो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट्स हैं दे विल नाउ बी सब्जेक्ट टू मैंडेटरी इंस्पेक्शंस एंड थर्ड पार्टी ऑडिट्स. ठीक है. Now all the manufacturers who produce high risk food items and have a central license, they must undergo an annual audit. इसका ऑडिट मतलब उनका जो पूरा बिजनेस है, दे विल बी चेक्ड एवरी ईयर टू इंश्योर कि वो सेफ्टी और क्वालिटी रूल्स फॉलो कर रहे हैं, टू मेक श्योर कि उनके जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो सेफर हैं एंड इट इज बेटर फॉर द कंज्यूमर्स, टू इम्प्रूव द सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. पहले क्या था ना, जो ड्रिंकिंग वाटर था, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इंडस्ट्री थी, दे हैड आस्क्ड फॉर सिंपलर रूल्स. दे वांटेड टू अवॉइड दीज 2 सर्टिफिकेशंस दैट वर रिक्वायर्ड, एक BIS से और एक FSSAI से, क्योंकि उनके लिए था कि प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. पहले ऐसा था प्रीवियसली, बट अब नहीं, अब ये हाई रिस्क में चले गए हैं. FSSAI एक ऑटोनमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है. इट हैज बीन एस्टैब्लिश अंडर फूड एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, जिसका मकसद ही यही है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ. कैसे? प्रॉपर रेगुलेशन और सुपरविजन हो ऑफ फूड सेफ्टी. इट लेज डाउन स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस in relation to articles of food, provides for licensing, registration, accreditation for food business operators. मतलब सिंपल सा मतलब है, रूल सेट करना, स्टैंडर्ड सेट करना फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड टू मेक श्योर कि एक तो गुड क्वालिटी की हो. लाइसेंस भी यही देते हैं टू फूड बिजनेसेस. इंश्योर करते हैं कि जितना भी इंपॉर्टेंट फूड आ रहा है वो सेफ्टी रूल्स मीट करे. फॉर अप्रूविंग फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज, मैनेजिंग फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज अक्रॉस द कंट्री, ये सारा काम FSSAI के अंदर ही आता है. फूड इंपोर्ट भी देखना, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज की एक्रेडिटेशन करना, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड सर्टिफिकेशन ऑल्सो. ठीक है. क्या करना है आपको? पॉलिटी के सेशंस में अगर कोई डाउट हो रहा है तो ये देखना है बस. कोई डाउट है, यू कैन आस्क, यू कैन वॉच दीज सेशंस. प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, रेफर देम इन योर प्रिपरेशन. देयर आर अदर सीरीज ऑल्सो दैट आर गोइंग ऑन बाय अदर फैकल्टीज दैट आर टेकिंग दीज सेशंस. डू रेफर देम. करंट अफेयर के अगर किसी एक टॉपिक पे मान लो आपको कुछ समझना है, कोई एक टॉपिक पकड़ना है करंट अफेयर का, तो रेफर कर सकते हो. डेली न्यूज़ एनालिसिस है दैट आई टेक. डेली जो कवर होता है करंट का वो आपको करवा दिया जाता है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, हर तरीके से, इवन इंटरव्यू के तरीके से भी आई शेयर बताती हूँ. तो इसीलिए रेफर करो, देखो, समझो और रिवाइज एंड राइट. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े. 4th एशिया ओशिनिया मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर्स कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक न्यू दिल्ली, इंडिया के अंदर. तो ये कॉन्फ्रेंस कैसी है? पहली 2010 में हुई थी चाइना के अंदर.
इसके बाद से हर साल होती है, अलग अलग जगह पर होती है अक्रॉस एशिया। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, इट इज अ मेजर इवेंट फॉर शेयरिंग द नॉलेज अबाउट वेदर, क्लाइमेट, द यूज ऑफ द सैटेलाइट डेटा। तो मेट्रोलॉजिकल से समझ आ रहा है, सैटेलाइट से ही समझ आ रहा है। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस में होते हैं पार्टिसिपेंट्स, दे डिस्कस हाउ टू यूज सैटेलाइट इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव वेदर फोरकास्टिंग, टू स्टडी क्लाइमेट चेंजेस। दिस ईयर इट इज होस्टेड बाय IMD, under which Ministry of Earth Science. So it has become a premier event for meteorologists, earth scientists, satellite operators, students also from across the regions. इस साल की कॉन्फ्रेंस इज होस्टेड बाय IMD, which is under Ministry of Earth Science. It includes presentations, discussions, training workshop to teach participants how to use the latest satellite data for weather, for climate studies. तो इस सैटेलाइट का एम क्या है? पहला, ये कॉन्फ्रेंस फोकस करती है ऑन शोइंग हाउ सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द वेदर, क्लाइमेट, अदर नेचुरल प्रोसेसेस। दूसरा, एडवांस सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग साइंस। इट वर्क्स टू एडवांस द यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, क्रिएट अ स्पेस फॉर collaboration, dialogue. It provides a platform जहाँ पर satellite operators, users, scientists, meteorologists, they discuss, they share the ideas to improve how satellites are used. Inform the community about the current status, जो current status है, future plans, ताकि everyone is aware of what coming next. नई टेक्नोलॉजीज की डेवलपमेंट एनकरेज करता है फॉर वेदर सैटेलाइट सेंसिंग एंड एनकरेजेस यंग साइंटिस्ट इन दिस फील्ड ऑल्सो। ठीक है, ओवरऑल इन शॉर्ट, दिस कॉन्फ्रेंस प्रमोट्स टीम वर्क, इनोवेशन एंड लर्निंग टू मेक बेटर यूज ऑफ सैटेलाइट्स फॉर वेदर रिसर्च एंड क्लाइमेट रिसर्च। सॉर्टेड है। चलिए आगे चलते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल, जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति की। 4th एडिशन इस एक्सरसाइज का, दैट इज कमेंस्ड इन मलेशिया। तो पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए एक्सरसाइज कौन से 2 देशों के बीच में होती है। ये जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना आर्टिकल्स, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते हैं, लिखना पड़ता है। या स्टार्ट राइटिंग, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती है बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। तो यहां तक तो मुझे पता चल गया एक सवाल का आंसर कि कौन से 2 देशों के बीच में होती है। पहली बात, हर साल होती है। हाँ जी, हर साल होती है। तो इंडियन आर्मी इज रिप्रेजेंटेड बाय द बटालियन ऑफ अ रेजिमेंट मेहर एंड इट इज अ यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी। देखो हर साल ऐसा होता है, एक बार तुम्हारे यहाँ एक बार हमारे यहाँ। पिछली बार इंडिया में हुई थी, मेघालय में 2023 में नवंबर में। मकसद क्या है, गोल क्या है? आपस में मिलिट्री कोऑपरेशंस इंप्रूव करना, एनहांस द जॉइंट मिलिट्री कैपेबिलिटी, fighting against the armed groups in difficult jungle areas. They are focused on that also, right? So the exercise is designed to help both the countries carry out the operations according to Chapter 7 of UN mandate. 2024 की एक्सरसाइज इट विल बी कंडक्टेड इन 2 phases. पहले फेज में क्या होगा? पहले फेज में दोनों इंडिया और मलेशिया की जो आर्मी होगी, they will train together through a cross training process. Lectures, demonstrations, practical practice of the various military drills. They will be focusing on jungle terrain training. दोनों armies जो हैं, they will practice कि how to fight, how to move in the forest or jungle areas. That can be very challenging. Phase 2 is a simulated exercise. जहां पर दोनों armies will actively take part in various military drills. ठीक है? इन exercises का पर्पस ये है कि इट विल अलाउ बोथ द आर्मीज टू शेयर देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स, डेवलप बेटर टीम वर्क, कॉपरेशन अमंग द 2 आर्मीज, मेक श्योर कि दे वर्क स्मूथली। फ्रेंडली रिलेशंस भी होते हैं 2 देशों के बीच में, है कि नहीं?
So that is the whole scenario. एक आर्टिकल आया पेपर में, Why scrutiny of lower fertility rates isn't the answer to delimitation crisis. इसको पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है. कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, हाउ दिस पॉपुलेशन ग्रोथ कैन अफेक्ट द पॉलिटिकल पावर, द रिसोर्सेस एंड द डिफिकल्टी इन मैनेजिंग बोथ growth and fairness in the political system. See, let me tell you the whole scenario. हम सबको पता है कि पावर इज शेयर्ड इंडिया के अंदर, नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. पॉपुलेशन हर एक स्टेट की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पॉलिटी में आपने पढ़ा हो तो मान लो ये पर्टिकुलर स्टेट है, आपने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज काटी, मान लो 1 लाख पॉपुलेशन रिप्रेजेंट, यहाँ 1 लाख 1 लाख 1 लाख. यूपी मान लो फॉर एग्जांपल, ये स्टेट यूपी है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल. अब कितनी स्टेट्स हैं, मान लो हरियाणा है, चलो 10 स्टेट्स हैं, ठीक है. तो 10 स्टेट्स हैं और हरियाणा की 10 सीट्स हैं लोकसभा में, तो वो पॉपुलेशन के बेसिस पे ही है कि 1 लाख पॉपुलेशन को एक एमपी रिप्रेजेंट करेगा. अब सिक्किम में मान लो 1 लाख की ही पॉपुलेशन है, तो वहां तो सिर्फ एक ही एमपी गया, वहां 10, यहां 1 है ना. इट इज डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन. सो पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट, इट इफेक्ट्स हाउ मच रिप्रेजेंटेशन ईच स्टेट हैज इन द पार्लियामेंट. सिंस 1976 दिस डीलिमिटेशन, इसको बोलते हैं डीलिमिटेशन और रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज, जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती भी तो है. अब क्या हुआ था, डिलिमिटेशन जो थी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इट वाज फ्रोजन. देयर विल बी नो न्यू सीट्स इन द पार्लियामेंट बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ. तो फिर स्टेट्स ने अब पॉपुलेशन कंट्रोल करके रखी. देयर इज अ नॉर्थ साउथ इशू ऑल्सो कि साउथ के लोगों ने, स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल करके रखी है. व्हाट अबाउट द अदर स्टेट्स लाइक सिक्किम ऑल्सो, राइट? क्योंकि आप तो पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहे, कंट्रोल कर रहे हो, तो वो तो कहेंगे हमें तो इसकी सजा मिल रही है क्योंकि हमें सिर्फ एक ही सीट मिल रही है, और जहां पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रही है उनको 40-40 सीटें मिली हुई हैं. 2021 में फिर क्या हुआ, 1976 में ये हुआ, 2021 में फिर इसको फ्रीज करके अगले 25 साल तक एक्सटेंड कर दिया. अब बात आ जाती है, अब हम आ गए हैं 2025 में. अब ये फ्रीज पीरियड होने वाला है एंड. अब शुरू हो गई है डिबेट वेदर टू कंटिन्यू इट और चेंज द सिस्टम. तो वन आइडिया इज की टू एलोकेट द सीट्स बेस्ड ऑन द वोट शेयर. बट फॉर नाउ अगर मैं बात करूं, कंटिन्यूइंग द फ्रीज, क्या ये बेस्ट सॉल्यूशन है? डू यू थिंक सो? मतलब थिंग्स विल बी फेयर, एफर्ट्स ऑफ द स्टेट्स विल बी एक्नॉलेज्ड, एक तो ये भी पॉइंट हो सकता है. व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखो, पॉपुलेशन जो है ना स्टेट की, इट इफेक्ट्स हाउ मच रिसोर्स इट विल गेट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. ज्यादा लोग, ज्यादा जरूरतें, ज्यादा रिसोर्सेस. फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती है हाउ टू डिवाइड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में. तो फॉर मेनी ईयर्स इट यूज पॉपुलेशन डेटा फ्रॉम 1971 टू कैलकुलेट दिस. बट वो किस पे बेस्ड था? डिलिमिटेशन पे. अगर मैं रिसेंट ईयर्स की बात करूं, 14th एंड 15th कमीशन, फाइनेंस कमीशन, दे डिसाइडेड टू यूज करंट पॉपुलेशन फिगर्स. करंट पॉपुलेशन फिगर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. ये आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है. जो आपको लगता है मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, उसको लिखते जाओ, राइट? तो अब क्या हुआ ना, टू मेक थिंग्स फेयर दे इंट्रोड्यूस दिस डेमोग्राफिक चेंज वाला कॉन्सेप्ट. डेमोग्राफिक चेंज which recognizes the efforts of the states that have reduced their population growth. मान लो in the 15th Finance Commission, for example, population was given 15% weight, while demographic change was given 12.5%. मतलब जिस स्टेट ने जैसे एफर्ट्स किए हैं टू रिड्यूस देयर पॉपुलेशन ग्रोथ, दे विल गेट सम एडिशनल रिसोर्सेज, ताकि आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस करें. अभी तक जो पढ़ा है उसमें समझ आया क्या बोला? पॉपुलेशन ग्रोथ इफेक्ट करती है हाउ मच मनी ए स्टेट विल गेट, रिप्रेजेंटेशन दे विल गेट. डिलिमिटेशन फ्रीज स्टॉप दी सीट्स, बट अब टाइम पास आ रहा है, व्हाट शुड बी डन? Resource allocation is impacted by the population numbers. Change in the population growth is now considered when you are dividing the resources. Right? Now, what are the necessary measures
ये सारा आर्टिकल आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. What are the necessary measures to mitigate the population disparity? जो population disparity है among the states. So what are the measures to mitigate that population disparity? पहला, address the economic disparity first of all. We need a plan to help all the states grow together. सबके लिए jobs लाओ, improve infrastructure, help areas that are struggling with economic development. कुछ states में there are more people, they are facing slow economic growth. Difference आ जाता है, rich state, poor state. फिर क्या होता है, inequality और बढ़ती है, tensions बढ़ती हैं. You address that. We have programs like aspirational districts program. Infrastructure develop करो वहाँ, roads, railways, internet, digital connectivity, education. बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी है और एडुकेशन और स्किल्स और मॉडर्न जॉब्स नहीं है. एडुकेशन इंप्रूव करो वहां पर, एग्रीकल्चरल इनोवेशन लेकर आओ, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स लेकर आओ, मार्केट लिंकेज बनाओ ताकि फार्मर अपनी क्रॉप को आसानी से बेचे. और इस सारे मेजर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को साथ में काम करना पड़ेगा, है कि नहीं? ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? सो एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है. देखो, इंडिया की पॉपुलेशन इज ग्रोइंग और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2070 तक ये कम से कम 170 करोड़ चली जाएगी. राइट नाउ एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ईच वुमेन हैज, टोटल फर्टिलिटी रेट जिसकी हम बात करते हैं दैट इज 2, विच इज जस्ट बिलो द रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन. अब कुछ स्टेट्स में टोटल फर्टिलिटी रेट 1.5 है, किसी में 3 है. अनइवन पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई. सम स्टेट्स हैव लो फर्टिलिटी रेट्स, दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द बर्थ, राइट? बट इंडिया इज ऑलरेडी डीलिंग विद ओवर पॉपुलेशन. तो अगर वहां पर हाई फर्टिलिटी रेट होंगे उन एरियाज में तो सिचुएशन और वर्स हो जाएगी, राइट? सो मेन गोल इज टू लोअर द TFR इन द हाई ग्रोथ स्टेट्स. अब इंडिया में ना कुछ 4-5 स्टेट्स हैं करंटली जिनका TFR हाइयर है देन 2.1. सो इंडिया की पॉपुलेशन ट्रांजिशन इज अ चैलेंज, बट उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं टू इम्प्रूव पॉलिसीज फॉर बैलेंस्ड ग्रोथ. अगर आपकी फेयर और थॉटफुल स्ट्रैटेजीज होंगी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, तो वी कैन इंश्योर कि हर एक स्टेट को फेयर चांस मिले टू डेवलप. सो success in managing the population should be celebrated as a positive step towards sustainable progress. Empower people, improve healthcare, make sure that the growth is balanced across the country. This was the whole article. उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया हो. So please do write these points. अपने लैंग्वेज में इसको लिखो ताकि आपको आंसर राइटिंग में हेल्प मिले. For more such information, do subscribe to Shriram's IAS. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. All the best. Thank you.